Hello everyone, welcome to the first episode of my podcast. Hi, I'm Prakash. Today, I'm starting my podcast journey with very special guest, Harsh Mishra, founder of Stronic Media. He started his journey as a freelancer of 4,000 per month, and today he has 25 plus team members and a great vision. Today, we'll talk about his journey, struggle, agency growth, team building, and many much more things. Hi Harsh, welcome to the first podcast. I'm really excited to have a conversation with you. Same here, Prakash. I am also very fortunate to be on the very first show of yours. So Harsh, for the people who don't know about Stonic Media and Harsh Mishra, so उनको आप कैसे introduce करना चाहोगे? Yeah. So, hi everybody, I'm Harsh Mishra. I run a digital marketing agency with the name of Stronic Media here in Wapi. Currently, we have a team of 25 plus team members and we are an integrated marketing agency. Okay. So before Stonic Media, आप किस तरह के person थे? Yeah. So before Stronic Media, I come from a very humble, lower middle class family. So always a hustler wanted to Build do something. something big. Yeah. Okay. And how digital agency came into your life? Like आपने क्या सोचा? Yeah. So like before starting an agency, I was very much curious and excited about the marketing and advertising world. Okay. I still remember a story where I read an article where it says that Coca-Cola and Google still invests 10% of their revenue on advertising. So Okay. it was a very odd kind of point for me because Coca-Cola को कौन नहीं जानता है कहावत है जहाँ पानी नहीं मिलता है वहां पे कोको कोला का बोतल मिल जाता है एंड गूगल इज समथिंग विच जो बाय डिफॉल्ट मोबाइल एप्लीकेशन नए फोन हम परचेस करते हैं उसमें आता है स्टिल why these brands are spending so much hefty amount of money on marketing. So this was the first point that I got interested into digital marketing. Yeah. Okay. You started your journey as a freelancer around 4,000 per month, right? Yeah. Yeah. Okay. So what about that phase of your life? Correct. So when I was working as a freelancer, there was an agency in Rajasthan. That person Mehul Purohit gave me an opportunity to work with his agency and to manage per brands, to manage the social media accounts of those brands. He used to pay me 4,000 rupees per brand. Okay. Okay. Yeah, Okay. yeah. And what gave you the confidence कि आप अभी अपने proper agency run कर सकते हो because starting में तो definitely आप solo ही run कर रहे होगे, right? Correct, correct. Okay. So इनिशियली इतना ज्यादा क्लैरिटी तो कभी भी नहीं था कि मार्केटिंग एजेंसी बनाना है ये सारा काम करना है टू बी फ्रैंक फ्रीलैंसिंग ही काम कर रहे थे स्टार्टिंग में वो जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने का हमें टाइम मिला था कॉलेज में एट दैट टाइम इट वाज लाइक एन ऑप्शन फॉर मी कि विल ट्राई इट फॉर 6 मंथ्स इफ इट वर्क्स तो विल परस्यू दिस एज अ करियर इफ इट नॉट तो किसी कंपनी में जॉब कर लेंगे या एमबीए कर लेंगे दिस वाज द क्लीन माइंडसेट. Okay, and was there any moment where you felt that now I can do something bigger? Yeah. So when we started the marketing agency in Wapi, established as a company, at that time when we onboarded few of the clients, Okay. so उनका जो confidence था हमारे को लेके after working with them for a couple of months, that confidence is the stamp that we can pursue this as a career. Okay, and what did your family think and people around you, like your friends and what they think when you start this digital marketing agency? Yeah. So friends and family didn't knew what is digital marketing, but Okay. it sounds so fascinating. Digital Okay. marketing is something which sounds very exciting. तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अच्छा कर रहा है. अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है, but कुछ तो अच्छा कर रहा है. तो उनको कोई problem नहीं था. Okay. And like from very initially also everything we did it was self-funded. So पेरेंट्स से अगर आप पैसे नहीं लो तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है. Okay. हाँ, middle class family में वो चीज़ तो होती है. Okay, Yes. so how did Stonic Media officially started and what's the reason behind it? So as I told you previously that Stronic Media started in January 2022. Okay. I was working as a freelancer, got an opportunity. So the transition phase between a freelancer to an agency owner was very exciting. Uh, the trust from the clients we got after opening an agency that gave an confidence to continue this as a career. And what were the biggest challenge
यू लाइक हम्म लोकली जो बिगेस्ट चैलेंज आपने फेस किया होगा एजेंसी को वहां पे में स्टार्ट करने के लिए हम्म वो क्या है? So Vapi initially comes under probably tier 3 or tier 4 city. Yeah, So tier the 3 I guess. demand and the understanding of people toward digital marketing was very less. So सारे लोगों को जाके समझाना पड़ता था कि ये आपके मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए इवन जरूरी भी क्यों है. So that was a very struggling phase जहाँ पे आपको समझाना पड़ रहा है कि why marketing is important to you. correct Because yeah in this era also we Mhm. still see some peoples कि भाई जिन्हें ऐसा लगता है कि आप तो हमें ये चीज करके दो लाइक विल पे क्योंकि एट सम एजेंसी और सम क्लाइंट्स दे थिंक कि हाँ भाई मैं इस एजेंसी को 50,000 पे कर रहा हूँ एंड Correct. लाइक वो मेरी पूरी सेल्स लाएं ये करे वो करे उसके बारे में आपका क्या थिंकिंग है? So, just wanted to make a point that digital marketing agencies are not magicians. We are not magicians. So, we are into the business of consulting. We understand your business. You understand your business. We understand marketing. So, जब हम दोनों का collaboration होता है वहां पे जाके कुछ fruitful outcome आता है. Okay. So, just wanted to clear from this podcast that we are not magicians. Okay, okay. So, how did you hire your first few team members and उनकी qualities आपने क्या देखी that हाँ you thought कि हाँ this is the person I want. Correct. So, with an experience of like in 3 years of my journey, probably I have hired 50-60 people. जिसमें से 25 are working with us and बाकी लोग are not with us. Hiring is all about intuitions. Like at the time of hiring, at the time of interview, आपको सामने वाले को देख के क्या gut feeling आ रहा है, क्या intuitions आ रहा है, that is the only thing which matters. There is no like philosophical thing or fundamental thing कि आपको hiring के time पे company IT companies which have 3 or 4 round of interviews उसके बाद भी उनके पास candidate अच्छे नहीं मिलते हैं. बहुत बार उन्होंने जो इंटरव्यू में देखा होता है उससे कैंडिडेट एकदम ही अलग होता है. So it is not a fundamental thing. Do what your intentions, your intuitions are saying. अगर वो बंदा सही है तो ठीक, अगर नहीं बंदा सही है तो 3-4 महीने बाद निकाल दो. Hire fast, fire fast. As simple as that. Okay. What's the toughest phase of Stonic Media? There was no toughest phase, I feel. The toughest phase, like not the toughest phase, but the hard phase was managing people. Okay. Because I never worked in any agency, so I didn't have the experience and expertise of how to manage people. Because fundamentally, if you will see that agencies are like, आप talented लोगों को hire कर रहे हो अपनी agency में, and you are selling the talent to the clients. Correct. This is what the model of agency. It is not like आपके पास कुछ बहुत बड़ा USP है, आपके पास कोई product है या कोई ऐसा services है जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is all about hiring, managing people. So I feel managing people is always a hard part. It was a hard part previously, it was a hard part today, and it will be a hard part in the coming future. Okay. In the beginning, how did you get your first few clients? Like to answer this question, what I want to say is confidence. सबसे पहले जब आप किसी भी क्लाइंट को पिच करने जाते हो वो टाइम पे you have opened a new agency, you don't have that strong portfolio to back your pitch. But at that time I feel वो जो confidence client आपकी आंखों में देखता है and वो जो intent के साथ आप उनसे बात करते हो, that is the thing which wins the client trust initially at the very first position. Because so I have seen few people जिनके पास एक होता है कि जिसके पास confidence है स्किल सेट उतना नहीं है एंड ऑन दी अदर साइड एक पर्सन है जिसके पास स्किल सेट पूरा है बट कॉन्फिडेंस नहीं है. तो इन दो सिनेरियोज व्हाट विल यू प्रीफर लाइक जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो और जिसके पास लो कॉन्फिडेंस है बट he has the skills? 100% confidence, any day confidence. Portfolio doesn't matter. All it takes to win the client or all it takes to onboard a client, the only thing which matters is confidence. आपके पास कितना भी strong portfolio बट आपको communicate करने नहीं आता है अपने client के साथ, it will not work. Exactly. What is more difficult, getting a client or retaining clients? Yeah. So very fortunately, we are into the industry where the industry itself is booming. The awareness about the marketing and branding and advertising is booming. So getting new clients was never a big thing. Retaining the clients is the most hardest part.
Okay. The reason behind this is when you retain the client, you have to showcase the results. That's why वो वापस आपको चूज करेंगे, otherwise why would he? करेक्ट. सो रिटेनिंग द क्लाइंट वो वाले टाइम पे आपको बैक करना पड़ता है अपने रिजल्ट्स के साथ एंड विथ योर फ्यूचर प्लानिंग कि आपके ब्रांड को लेके हमारी एजेंसी का फ्यूचर प्लानिंग ये है. जब तक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके फ्यूचर प्लानिंग में और आपने जो पास्ट में काम किया है उसको लेके, तब तक रिटेन नहीं होगा क्लाइंट. Okay. So retaining client is the hardest part. Hardest part. What kind of clients are the best fit of agency like Stonic Media? Yeah, I think the clients who give us the room to think are the clients who are the best fit for our agency or for any agency. Clients who does not gives you the room to think. They feel like marketing agencies are just executors. All they think कि हमें ठीक है, हम इन्हें पे कर रहे हैं and Yeah. इन्हें execution करना ही पड़ेगा from the very first month, right? Yeah. So we are not a service provider. You have to keep this in mind while hiring a agency. That आप marketing plan बना रहे हो ना, marketing plan को अपनी agency को दे दिया and execution वाला काम आपने agency को दे दिया. It does not work like that. At the time of making that marketing plan, you have to involve your agency. राइट. आप मार्केटिंग प्लान में एजेंसी को इन्वॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक एजेंसी भी अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. And of course, you have to do full freedom to your Yeah. agency, Yeah, so yeah. he can like definitely do anything what he want to. Correct. The creative freedom is the most important thing here. Okay. What is the one mistake biggest agencies make to like about उनके pricing को लेके? क्योंकि I have seen also those agencies, I mean जो client को pitch करते हैं, तो client must say कि मतलब आपकी pricing बहुत high है, लोग इससे कम price में भी काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज को कैसे tackle करते हो? Correct. So I meet many agency folks in my daily routine. If the question is concerned to the pricing part, what I feel is quality over quantity is the option. You have to choose कि आपको quality वाला agency बनना है कि quantity वाला agency बनना है. Okay. Like we at Stonic Media, we have never worked with any cafes or electronic shops. Just the reason is I have all the respect for them, but the thing is that when you work with a cafe, अगर वो आपको like for an example 20,000 या 50,000 रुपीज हर महीने दे रहा है, तो what they expect कि at least 50,000 रुपीज वो आपको दे रहा है, उनका मार्जिन उस पर 25% है, तो कम से कम आप उसको 2 लाख रुपए कमा के दो. अगर आप 2 लाख रुपए नहीं कमा के दे रहे हो तो 50,000 रुपए जो वो आपको दे रहे हैं, इट इज वेस्ट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई फील कि क्वालिटी चूज करना है आपको. टू मेक योर एजेंसी बिग यू नीड 1 or 2 क्लाइंट्स. यू डोंट नीड 50 क्लाइंट्स. 1 या 2 क्लाइंट ऐसे जो आपको क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं, जो आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं. इट इज ऑल रिक्वायर्ड टू मेक योर एजेंसी बिग. Okay. The one client lesson you learned the hard way. Yeah. So the answer of this question is quite personal. A year ago, I lost my father. So Right. So there was a client. He used to run 6 different hospitals. So I was very much into the client's work. That managing director of that particular group of hospital used to have all the discussions and marketing plans with me only. But at the time that my father passed away, I was into the family thing. वो 2-2.5 महीना ऐसा था जहाँ पे काम पे बहुत ज्यादा फोकस मेरा नहीं था. So after when I come back to the work regularly, the client called me, Harsh, I want to meet you. I went to the client and he told me कि 2 महीने से आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा पर्सनल आपको इम्पैक्ट हुआ है, इसके लिए काम पे बहुत ज्यादा ध्यान पुश श्योर नहीं होगा. बट द लाइन ही टोल्ड मी इज कि जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अगर उनका नाम राकेश होता, तो उन्होंने ऐसा बोला कि राकेश तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता है, बट राकेश हु इज द ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 6 डिफरेंट हॉस्पिटल्स, ही विल नॉट अंडरस्टैंड योर पेन. If I am giving you X amount of money, I need Y, I need so and so results. So that hit me very hard. That लोग बोलते हैं कि आपको रिलेशनशिप बनाना है, आपको अप्स एंड डाउन्स में काम आएगा वो रिलेशनशिप. बट आई फील एक काम ही है जो आपके बुरे समय में काम आएगा. खाली अगर रिलेशनशिप पे आपका बिजनेस बिल्डअप है, तो वो रिलेशनशिप में कभी भी अगर ऊपर नीचे आया फॉर एनी सो एंड सो रीजन, इट विल डायरेक्टली impact your business. Okay. Yeah. Okay. So
you mentioned that your father passed away last year. Hmm. Okay, are you comfortable? Yeah. Okay, fine. So, what kind of relation do you have with your father? It's like in middle classes, like you mentioned. ठीक है, I let's talk about myself. ठीक है, मेरे father से उतनी like communication नहीं होती जितनी like होनी चाहिए एक father and son के बीच. So, what about yours actually? Yeah. So very fortunately and very luckily, I had very strong relationship with my father. Okay. और there were time जब हम रात को 2-3 बजे तक बैठ के कपिल शर्मा शो देखते थे. He used to like कपिल शर्मा शो so much. Okay. So both of us used to enjoy watching कपिल शर्मा शो. मम्मी परेशान हो जाती थी, रात को 2-3 बजे तक देख रहे हो, आवाज आ रहा है, वो भी अच्छे से सो नहीं पा रही है. But I think he passed last 2nd of August previous year. Okay. उसके 1 साल पहले तक हमारा रिलेशनशिप आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था. द रीजन फॉर दिस इज आई फील कि उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मेरा लड़का कुछ तो जिंदगी में कर लेगा. तो हर फादर को ये डाउट जाकिर खान कहते हैं कि आपके माँ बाप आपके सपने के खिलाफ नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं. Exactly. सो व्हेन योर पेरेंट्स गेट द कॉन्फिडेंस कि अब मेरा बच्चा कुछ तो जिंदगी में कर लेगा, मेरे को हैंड होल्ड उसको नहीं करना पड़ेगा, after that point the relationship becomes very stronger. So I had very good relationship with him. No hard feelings or no sad feelings कि अभी वो होते तो ये होता. That is but एक ही बस एक रिग्रेट है कि प्रोबेबली वो होते तो आज देख के वो और ज्यादा खुश होते. बट जितना भी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, आई डोंट रिमेम्बर एनी बैड मेमोरीज विद हिम. इट वाज ऑल गुड. Okay, so one more thing I would like to ask. Yeah. Like my father, when I was छोटा बच्चा, like not that much, but still 12-13 years old, and still my father compares me कि with other people's that for example typical fathers के शर्मा जी के लड़के को देखे हो तो ये चीज आपके फादर करते थे और आज की all good. मेरे को गूज़बम्स आ रहा है ये बोलते हुए. आई डोंट नो व्हाई. सारे पेरेंट्स करते हैं, मैंने भी देखा है. मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके पापा मेरे को लेके उनको कंपेयर करते हैं. बट वेरी फॉर्चुनेटली आई फील मेरे पापा हमेशा मुझे अपने आप से कंपेयर करते थे. तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. आई वेंट टू राजस्थान फॉर अ वर्क पर्पस. तो वहां से मैंने अपनी मम्मी के लिए फर्स्ट टाइम साड़ी खरीद के लेके आया. राजस्थान का बहुत पॉपुलर होता है साड़ी. तो एंड पापा के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या लूं, तो एक टी शर्ट लेके आया उनके लिए, लाया एंड उनको दिया. सो द फर्स्ट सेंटेंस माय फादर टोल्ड मी वाज, यार तू अभी 19-20 साल का है, तू एटलीस्ट ये सब चीज सोच रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट भी दे सकता हूँ. जब मैं तेरी एज में था तो नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई कुड हैव इमेजिन कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट भी दे दूं. तो तू कम से कम सोच रहा है. इट वाज वेरी यूनिक बिकॉज पेरेंट्स कंपेयर करते हैं आपको दूसरे बच्चे के साथ, बट मेरे पापा अपने साथ कंपेयर करते थे मेरे को. Fourth thing I would like to ask, ठीक है, like मेरे फादर कभी कभी कहते थे, इवन मोस्ट ऑफ टाइम अभी भी कहते हैं कि मेरा बच्चा ही नालायक है. वो ऐसा कर, आई डोंट नो व्हाई. आई एग्री विद योर फादर कि भाई ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ सोता रहता है, whatever it is, ठीक है. So is in this scenario में आपके फादर का, I mean आपका एंड आपके फादर का क्या सिनेरियो रहता था? Yeah. So again I remember a story when my sister was when we planning to get our sister married. जब वो पूरा प्रोसेस चलता है. I come from बिहार, तो हमारे में वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होता है. 2 साल पहले से वो पेरेंट्स तैयारी करना शुरू कर देते हैं शादी का. So when like कपल 3-4 महीने पहले जब वो शादी होने वाला था, उसके पहले तो बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला होता है, तो पेरेंट्स कलेक्ट करने लगते हैं पैसा हर जगह से कि शादी में खर्चा ऊपर से बेटे की शादी होती तो सबसे बड़ा टेंशन रहता है दहेज का, जो अभी भी बिहार में चलता है, which is in my personal scenario not good actually. क्योंकि if आपका आप कहते हैं कि आपका हाथ पैर ठीक है तो आपको दहेज लेने की क्या जरूरत है. ये मेरे को सबसे चीपेस्ट मेंटालिटी लगती है. बिकॉज व्हाट आई पर्सनली थिंक कि इफ अगर कोई बाप अपनी बेटी भी दे रहा है, उसके बाद फादर यूज्ड टू वर्क थिंग्स जस्ट बिकॉज, ठीक है आपकी बहन है यू मेंशन, तो आपके पापा कभी भी बेस्ट ही सोचेंगे इवन शादी के टाइम पे भी. ठीक है, तो ये आपके सिनेरियो में हुआ था कि आपको भी दहेज देना पड़ा था? इफ यू आर कंफर्टेबल. नॉट कंफर्टेबल. इसको इसको चेंज कर दिया ना, दहेज नहीं बोलते, गिफ्ट्स बोलते हैं एक्चुअली. तो गिफ्ट्स तो आपको देना ही पड़ता है. अब आप उसको कैसे रेजोनेट करो, दहेज में करो कि गिफ्ट में करो. आई हैव वेरी
strong relationship with my brother-in-law, मेरे जीजा जी. So don't want to answer this question, but gifts तो देना ही पड़ता है. अगर आप बिहार से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, you Yeah, have but to the give thing is certain कि gifts. आप like what I think and what I believe कि एक father अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक है, उसके लिए हमेशा बेस्ट सोचता है, एंड ड्यूरिंग मैरिज भी भाई वो बेटी भी देता है, और कहते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, राइट? एंड उसके बाद आज जो दहेज भी वो मांगते हैं, आपको वो भी देना होता है, अदरवाइज कि आपकी बेटी सामने वाले घर में खुश नहीं रहेगी. सो लाइक ये लाइक एकदम वर्स्ट चीज मुझे लगती है. No, totally agree with your point. I too fundamentally don't believe into this concept. But you know, चल रहा है बहुत लंबे समय से, कब तक चलेगा पता नहीं. Government is also trying their best even now, but still पता नहीं कब बंद होगा. We'll see. शायद हमारे रहते हो जाए, हमारे बच्चे को भी देना पड़ेगा. What will you do if some like in like No, 100%. I need a very smart girl who can. हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. आई एम कैपेबल इनफ टू अर्न मनी. आई डोंट नीड समवन एल्सेस मनी टू or someone else's money to buy a car. I can buy my own car. Okay, so anyone who is watching this podcast, ठीक है, is like matrimonial समझ लो, ठीक है, कोई सुटेबल हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में मेंशन कर देना. आपने क्वेश्चन पूछा है, रिमेम्बर स्टोरी विद माय फादर. जैसे वो हमारी बहन का शादी होने वाला, मेरी बहन का शादी होने वाला था, उसके 5-6 महीने पहले से ही पापा ने पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था सारी जगह से कि खर्चा होने वाला है. So at that time I was 17. I was in 12th standard. So पापा ने एक दिन बोला कि यार सेविंग अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है अभी अपने, तो सेविंग अकाउंट में कुछ आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो ये पैसे का तब तक क्या करें. तो मैंने उनको बोला टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लो, सॉरी टाटा स्टील का शेयर खरीद लो. आई वॉज 17 एट दैट टाइम, पैन कार्ड भी नहीं है मेरे पास. ओके, आई टोल्ड हिम कि टाटा स्टील का शेयर खरीद लो, अच्छा चल रहा है अभी, एंड बहुत सारा न्यूज आर्टिकल्स में भी पढ़ रहा हूँ. वो टाइम पे टाटा स्टील का एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग भी हुआ था. एंड विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग, कल अगले ही दिन उन्होंने जितना पैसा पड़ा था वो सबका टाटा स्टील का शेयर खरीद लिया. And in 6 months, that share went up by 32%. Okay, in like 3-4 months, I feel. Okay. तो पापा ने जैसे ही 12th का एग्जाम मेरा कंप्लीट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट हुआ था पापा को, उससे उन्होंने मेरे को एक स्कूटी गिफ्ट दे दिया. एंड ही टोल्ड मी कि ये तेरे को ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि तूने 12th का एग्जाम खरीद रहा है, या गिफ्ट नहीं है. Take it like your cut. You know, you gave me a tip. I made money out of it, and I'm giving you a tip. And the tip is scooty. Okay. Yeah. So that strong relationship and bonding I had with my father. Okay, that's great actually. In your view, what's the difference between just posting content or building a brand? Yeah. So, like going deep into this question, the type of clients who believe in just posting the content to make their social media platforms active, उनका point of view actually ऐसा होता है कि उनको वो दिखाना है जो वो दिखाना चाहते हैं अपने कंज्यूमर को. बट द थिंग इज कि आपका कंज्यूमर इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू वाचिंग कि आप क्या बेच रहे हो, क्या सर्विसेज बेच रहे हो, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू ऑल दिस थिंग्स. उनको अगर फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर रनिंग अ बिग मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट, उनको ये नहीं दिखना है कि आप क्या क्या खाना बेचते हो. बट ऑब्वियसली अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है तो आप खाना तो बेचते ही हो. करेक्ट. उनको देखना है कि आपका खाना कितना अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, जो फूड हाइजीनिक क्या है, हाइजीन लेवल आप कैसे मेंटेन करते हो. एंड प्लस मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है तो आपका प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो प्राइसिंग को आप कैसे डिफेंड करते हो. आप स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बता सकते हो कि आपका जो प्रिक्योर होता है सामान एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, वो वेंडर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, रिलायबल है. आपके किचन के अंदर जो खाना बनता है उसमें हाइजीन लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है. आपके जो स्टाफ है, जो वेटर्स है, जो प्रोबेबली मैनेजर है उस रेस्टोरेंट के, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. एंड अगर आपका कस्टमर प्रोबेबली वो खाने को नहीं पसंद करता है तो आपका इनपुट क्या रहता है उस पे. विल यू गिव देम द रिफंड, विल यू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा, डिजर्ट प्रोबेबली आपने फ्री में उनको दे दिया, या आपने वो डिश को ही चेंज कर दिया. ये पर्टिकुलर चीज आपको दिखाना है अपने सोशल मीडिया के थ्रू, नॉट कि आप क्या खाना बेचते हो. करेक्ट.
what role does storytelling do in the marketing today? Everything. Storytelling is the most important, strongest, fundamental pillar when it comes to marketing. How you communicate your story with your potential customers, potential clients, that is the only thing which matters the most. Okay. No, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, जो भी क्रिएटिव्स पोस्ट कर रहे हो, ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो, न्यूज़लेटर्स लिख रहे हो, it should communicate your business with your customers. How important is founder content for local business? Yeah, for not just local businesses, after the COVID wave, initially we have seen that founder-led content are growing very drastically. To give you an example, before COVID, brands like Zomato, Oyo, all those unicorn companies built it like 15 or 20 years ago. दीपेंद्र गोयल को नहीं दिखाते थे, वो खाली जोमाटो 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 को ही दिखाते थे. But after COVID, people started, binge watching a lot of founder-led content. That is because the reason behind this is how you will differentiate Zomato and Swiggy. Both the companies are doing good. Both the companies provide exactly similar services. Exactly. But I'm not saying कि स्विगी छोटी कंपनी जोमेटो के कंपैरिजन में छोटी कंपनी है बिकॉज उनके फाउंडर कौन है प्रोबेबली लोगों को पता भी नहीं है. बट जोमेटो के फाउंडर कौन है ये बच्चा बच्चा को पता है. सबको पता है. It can be a reason for Zomato's drastic growth because at the time of COVID, if you will see, the market share what Swiggy had was 60-65% and Zomato का वो time पे 35-40% था. But now the current data, if you will see, Zomato stands at around 68 to 70% and Swiggy is on 32 to 30%. Okay. So that gives you a very real answer that founder-led content, it is not just an optional thing, it is a thing which has to have in your marketing plan. तो मैं राज शमानी एंड रवि तलरेजा का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें रवि तलरेजा मेंशन कि इन 2030 और इन द 5 to 10 नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स जो बिजनेस अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड नहीं कर रहे हैं और अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेके सीरियस नहीं है, दे विल गेट वेनिस्ड. इट्स लाइक कि जिसका प्रेजेंस है उनके कंपैरिजन में. First of all, very big fan of Rajiv Talreja. I think I have watched so many of him, his seminars and webinars. I so much believe in this. If you will see my business card, सबसे पहले उस पे लिखा हुआ if your business is not online, if your business is not on the internet, your business will be out of business. Yeah. That quote is from Bill Gates. That is exactly correct. आपको online आना ही पड़ेगा. ठीक है. How should a small business choose? Like website हो गया, branding हो गया, एड्स चलाना हो गया या डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लाइक सोशल मीडिया हैंडलिंग. तो कोई एक स्मॉल बिजनेस कैसे चूज करे भाई कि उन्हें क्या चीज स्पेसिफिकली करनी चाहिए या सभी चीज करनी चाहिए? So making a brand, choosing a very good logo, choosing a very brand color और उसके साथ आपको consistently आगे जाना है. Branding is the first part, then second part is website. Because website I feel एक ही ऐसा चीज है जहाँ पे if I want to learn about a business entirely, तो एक वेबसाइट ही है जहाँ पे जाके मैं सारा इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में. एंड आफ्टर वेबसाइट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो अपने एक एक प्रोडक्ट्स को या एक एक सर्विसेज को. सो कंक्लूडिंग दिस, ब्रांडिंग इज द फर्स्ट स्टेप. मेकिंग अ वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टाइप शुड बी द सेकेंड स्टेप. And the third step is social media marketing where you communicate with your potential customers. Can a local business build trust without spending a single penny? Yeah, for on sure. Ads, I mean on ads. For sure. Organic content आप बनाइए आप because local business है तो आप कितने रेडियस कितने एरिया में सर्व कर सकते हैं that is very limited. So ads में जाने की जरूरत ही नहीं है. I feel if you are very strict and very disciplined to make the organic content, it will build trust for sure. Yeah, you must have seen clothing brands, छोटे छोटे दुकान है जो बहुत crazy content बनाते हैं. उनके वीडियोस पे if you will see 2 million 2.5 million views भी आ रहे हैं. और उनको क्या चाहिए organically if you can like अपने shirts को आप दिखा के अगर 2 million view ले रहे हो तो वहाँ पे सारा
स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाता है सब जब चीज fail हो फाउंडर जाती है। आता है और अपना प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर What they देता will है do is they will just post content, Yes, like yes. जो भी रियल चीज है उसका एडिटिंग फॉर्म में, हम्म। और it just बस शो करते रहते हैं. just to like you have to be very much disciplined and consistent with that content when organic when it comes to ad आप पैसा लगा रहे हो एडवर्टीजमेंट आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है बट ऑर्गेनिक कंटेंट का एक लाइफ साइकिल होता है कि अगर आपने कंटेंट डाला है तो प्रोबेबली एक वीक तक उसके बाद व्यू आएगा उसके बाद व्यू आने का जो परसेंटेज है वो 2-3% ही होता है खाली स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम सो while making the organic content you have to very much disciplined and consistent about the quantity of content you are putting on your social media platform. What makes people remember a brand? Design, quality, trust. Yeah. So I'll tell you something and you have to answer those questions. Okay. When I say Zomato, what is the first color comes in your mind? Red, Swiggy, orange. that's the answer. Okay. तो सबसे पहले जो आपके कस्टमर्स को याद रहने वाला है वो है आपका ब्रांड नेम आपकी कलर कंसिस्टेंसी रेड कलर बहुत सारे और ब्रांड्स का है रेड बस का है ओयो का है व्हेन इट कम्स टू ऑरेंज ऑरेंज बहुत सारे वी वर हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ माय क्लाइंट दैट द कलर ऑफ ब्लिंकिट एंड रैपिडो इज एग्जैक्टली सेम तो सेम है फिर भी एक तो सबसे पहले ब्रांडिंग डिफरेंशिएशन बन रहा है कि मैंने इनको नाम बोला और इन्होंने कलर बता दिया तो सबसे पहले आपको ब्रांडिंग कंसिस्टेंट रखना है उसके बाद आपका सर्विस इतना ज्यादा सुपीरियर होना चाहिए कि पहली बार लोग प्रोबेबली आपके पास ब्रांड देख के आएंगे बट उसके बाद वो लोग आपके पास आपकी सर्विस देख के आएंगे करेक्ट सो ब्रांड कम्स एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आफ्टर द ब्रांडिंग पार्ट देन कम्स योर सर्विस So how do you see the digital awareness in Vapi or any tier 1 tier 2 cities? So when it comes to Vapi people have to take marketing seriously because Vapi and nearby area of Vapi Daman Silvassa Umargaon Sarigam Valsad there are many factories and I have read some news articles I don't know it is true or not true but वापी दमन सिलवासा एंड वलसाड में टोटल देयर आर 23 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज एंड एशिया में ये सबसे छोटा एरिया है जहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है बट स्टिल आप अगर वो 23,000 का लिस्ट बनाने बैठोगे तो उसमें से प्रोबेबली 60% के पास वेबसाइट भी नहीं है अभी तक दे आर डूइंग वेरी अमेजिंग बिजनेसेस दे आर डूइंग वर्किंग फॉर पास्ट 10 years 15 years ऑफलाइन दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन आल्सो बट रेपुटेशन बहुत अच्छा है क्वालिटी बहुत अच्छा है बट व्हेन आई वांट टू सर्च अबाउट दोस कंपनीज आई विल गेट एब्सोल्युटली नथिंग सो आई फील वापी में एग्जैक्टली आपको एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1 or 2% of your revenue should go into marketing. That is an investment you are doing. You have to do that. अगर आप वो नहीं करेंगे ना तो आप USP क्रिएट नहीं कर पाएंगे देर आर सो मेनी पेपर मिल्स केमिकल कंपनीज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज बहुत सारे हैं वापी में हाउ लाइक 5,000 ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है इस पर्टिकुलर 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपको दूसरे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से अलग दिखना है आप कैसे दिखोगे अगर आपका ब्रांड नहीं होगा Of course you have to build a brand, online presence. सर्विस आपकी तब पता चलेगी जब आप एक कस्टमर के साथ काम करना शुरू कर दोगे बट काम करने के पहले उनको कैसे पता चलेगा कि यार आप ना थोड़े से अलग हो आपने ब्रांड बनाया है एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप 2% अपने रेवेन्यू का मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आप कम से कम 5% ज्यादा लोगों से चार्ज कर पाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव अ ब्रांड यू हैव सीन पोर्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है मेट्रो सिटीज में इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थे इंडियन पोस्ट करके इतना बड़ा उनका पार्सल सर्विसेज है स्टिल पोर्टर आता है टोटली डिस्टर्ब कर देता है मार्केटिंग को डोमिनेट करता है जस्ट बिकॉज दे हैव ब्रांड दे हैव प्रेजेंस एंड दे हैव सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स इट सबसे पहले ब्रांड बनाया एप्लीकेशन बनाया एवरीथिंग इज डिजिटल सो people running businesses in Vapi and nearby Vapi you have to invest at least 2% of your revenue in marketing. If you will not, I am sorry, but you will, wipe out in coming 10 years for sure. Very hard facts. Fuck it. Which industry in Vapi or nearby Vapi, ठीक है, do you think जिन्हें digital marketing की need है? Manufacturing companies who are
into the business model of B2B. एक उनके दिमाग में they have that mindset कि अगर हम B2B business है और मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है तो हमें वेबसाइट क्यों चाहिए, हमें ब्रांड क्यों बनाना है. ऐसा नहीं है सर, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा. चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दिस यूनिवर्स. वहां पे अगर आप देखोगे सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ब्रांडिंग पे काम कर रही है. हमको चाइना से सीखना है एंड आपको भी अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा. कितने लोग उसको देख रहे हैं या प्लीज मॉनिटर मत करो, दैट नंबर विल कंपाउंड वेरी फास्ट. बट जैसे वो नंबर कंपाउंड करने लगेगा ना, वहां पे आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होगा. सो अभी कोई नहीं कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. डू इट, यू विल विन द गेम. How can agencies compete with tier 1, tier 2 cities like Bombay, Delhi and Bengaluru? You have to make your niche. Jack of all trades is a master of none. So ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. आपको niche बनानी पड़ेगी. एक particular sector ले लो. To have an example, one of my very good friend is just working for real estate clients and is doing very well, extremely well. So niche बना लो, तभी आप compete कर सकते हो बड़ी एजेंसी से who are in bigger cities like Bombay, Pune, Bangalore. Yeah. So let's talk about AI automation, ठीक है? Just because AI is evolving very fast, ठीक है? So how do you see AI, like as a threat or as an advantage? अगर threat जैसे देखा तो like AI is coming. Either you see it as a threat or you have to see it as an advantage. You don't have any other option. It is going to come, right? But I feel in our field, in digital marketing, it will be very revolutionary. I feel because what I have felt in the last 6 months, जितने भी campaigns के लिए हमको shoot करने पड़ते थे, the kind of effort our team used to make to hire influencer, to script everything, to go for the shoot, and after the shoots get complete, उसके बाद उसका वो end result आता था, and which we used to post and we used to do performance marketing on. एकदम ही खत्म हो गया है वो. Now if we want एक model के साथ हमको एक कोई particular offer promote करना है for a hospitality brand, for an example, वो it can be like done from AI. No models required, no shooting required. Just a prompt and yeah. So but इसमें कैच ऐसा है कि you have to have one person at least in your team who should know कि AI से क्या क्या करंट आप जो काम कर रहे हो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है. सो ऑल द मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स, यू हैव टू हायर वन पर्सन. यू कैन नेम इट एज R&D टीम और R&D पर्सन, और उनका काम ये रहेगा कि जितने भी नए AI टूल्स आ रहे हैं, बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग सो फास्ट, हर 2 महीने में एक नया टूल आ जा रहा है, तो उनका खाली जॉब रोल ये रहेगा कि वो नए AI टूल को यूज करके देखना है वो कहाँ पे हमारी टीम के लिए और हमारे वर्कफ्लो के लिए यूजफुल हो पाएगा, इसको फिगर आउट करना. या which part of agency work do you think that AI can improve, like design, editing or prompting? Everything. I feel like designing can be improved, copywriting can be improved, shoots can be improved. The normal process what you have to do in your daily regular routine is whatever you are doing, जो आप काम आप पहले से कर रहे थे आप उस काम को वैसे ही करो. जस्ट वो काम करने के बाद एक बार आप AI को बोल दो कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, नाउ यू कैन यूज योर एक्सपर्टीज. So for an example, if you are having a campaign for any brand, जो भी आपने figure out किया हुआ है ideas, वो idea आप Claude को दे दो, Gemini, ChatGPT, whatever AI tool you are using, उसको दे दो and tell them कि ये मैंने लिखा है, now इसको और better कैसे बनाया जा सकता है. So इससे दो चीज होगा, आपकी जो लिखने की ability है, जो creativity आपके दिमाग में है, वो भी रहेगी, because now the AI is coming, so people start, especially into our field, people have started to stop to think. सब कुछ AI कर रहा है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है. क्रिएटिविटी इज द पिलर. AI को आप प्रॉम्प्ट दोगे, उसके बाद वो आपको आउटपुट देगा. अगर सोचना तो एट फर्स्ट प्लेस आपको ही है. सो दिस प्रैक्टिस यू हैव टू मेक. सबसे पहले जिसे आप काम कर रहे थे वैसे ही वो काम करो आप. वो काम करने के बाद AI को दे दो एंड टेल देम कि अभी इसको और अच्छा आप बनाओ, अच्छा क्या किया जा सकता है, या ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. अगर लेट्स से अगर मेरी एबिलिटी है कि मैं क्लाइंट को एक ही ऑप्शन दे सकता था AI के आने से पहले, नाउ आई कैन गिव 5 मोर ऑप्शंस टू माय क्लाइंट. एक के ऊपर मैं काम करूंगा, बाकी 4 के ऊपर मेरा AI काम करेगा. दैट्स ऑल.
if AI can create content, then what will be the future of marketing? It was never about creating content. Okay. मार्केटिंग एजेंसीज का काम खाली कंटेंट क्रिएशन का थोड़ी है. हम्म, बिजनेस ओनर का ये प्रॉब्लम कभी था ही नहीं कि वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था. बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे. नो, इफ यू विल सी, लाइक एक सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए कितना एफर्ट लगता है. सबसे पहले आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है. वो कंटेंट कैलेंडर में ब्रांड मैनेजर्स और सोशल मीडिया मैनेजर्स हैव टू फिगर आउट कि पूरे महीने में क्या क्या काम होने वाला है. उसके बाद क्लाइंट से वेरीफाई कराना, क्लाइंट का आउटपुट लेना. वंस द क्लाइंट अप्रूव दैट कंटेंट कैलेंडर, फिर जाते हो आप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में. सो क्लाइंट का कभी ऐसा था ही नहीं कि सब कुछ उनके पास रेडी है, खाली उनको कंटेंट क्रिएट करना है, इसके लिए वो एजेंसी को हायर कर रहे हैं. उनके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, उनके पास मार्केटिंग लाइक एक्सपर्टीज नहीं है, इसके लिए वो हमें हायर करते हैं. सो नो मार्केटिंग एजेंसीज आर गोइंग टू डाई. You have to modify yourself. You have to execution जो आपका स्ट्रेटेजी था ना, उसमें आपको AI टूल्स कहाँ पे आप ला सकते हो, जिससे आपका प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकता है, उस पे आपको ध्यान देना है. Okay. Yeah. What do you think, like small team agencies, like you have 4 to 5% in your team, they can compete with bigger agencies who are like in tier 1, tier 2 cities? Like it is quite difficult, I feel, because there are many boutique agencies. बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं. But the thing is कि their workflow is they figure out the strategy. They confirm it with the brand manager or the CMO of that brand. Once that idea got confirmed, उसके बाद वो फिल्म मेकिंग के लिए अलग लोगों को हायर करते हैं, एडिटिंग के लिए अलग लोगों को हायर करते हैं. एंड देन एक बार वो पीस ऑफ कंटेंट रेडी हो जाता है, देन दे हैव परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अलग एजेंसीज होती है. तो दैट इज व्हाई उनका मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है. व्हाट आई फील इज इफ यू वांट टू मेक गुड मनी, बिग मनी इन द एजेंसी वर्ल्ड, you have to be an integrated marketing agency. One of the biggest marketing agencies in India right now, and with whom I respect so much, is Shebang. Harshil Karya is the person whom I look forward to. Is somehow unknowingly he is my mentor. He does not know it, but I take him as a mentor. Okay. So I feel like boutique agencies कभी भी बड़ी agencies को compare नहीं कर सकती है. But what do you mean, like as a founder, discipline? Like आपका क्या है? Discipline, the meaning of discipline for me is showing up every day. आप पर्सनल लाइफ आपका अच्छा नहीं चल रहा है, यू नो, देयर आर सम डेज जहाँ पे यू फील क्वाइट स्लो, काम करने का मन नहीं होता है. दीपेंद्र गोयल का एक पॉडकास्ट में देख रहा था विद राज समानी. वहां पे दीपेंद्र गोयल ने बोला था कि एज अ लीडर यू कांट बी टायर्ड. फिगर आउट योर एनर्जी समहाउ. यू कांट बी टायर्ड एज अ लीडर. You are a part of the team, but you are leading the team. So upper of the hierarchy ही अगर एनर्जी नहीं लेके आ रहा है, अगर वही डिसिप्लिन नहीं है, how you even like आप कैसे ये चीज को मेक श्योर करोगे कि जो सबसे लोअर ऑफ द पिरामिड में है वो डिसिप्लिन रहे. तो एज अ लीडर, एज अ फाउंडर ऑफ एनी एजेंसी, एनी बिजनेस, नो मैटर आपके पास 2 लोग है, चाहे 3 लोग है, 1 क्लाइंट है या 50 क्लाइंट है, you have to figure out your energy anyhow. Okay. So showing up every day is what discipline means. No matter situation क्या हो, whatever कुछ भी हो जाए. Like I remember कि when my father passed away, I was working, I was taking calls only. काम तो आपको करना ही पड़ेगा. विराट कोहली के फादर ऑफ हो गए थे, अगले दिन आके उसने सेंचुरी मारी थी. Somehow the world, if you cannot wake up in the morning, it cannot always be night. Yeah. What is the one habit that make you grow faster? Being consistent. Being consistent all day, every week, every month, every year. Being consistent. ये दुनिया रहे ना रहे, सर टूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, आपको दिन का 12 घंटा, 8 घंटा, जितने भी घंटे आप काम करते हो, उतना काम आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. You have to avoid all those party, all those noise from your brain, all those distractions. Yes, like that horse आपके दिमाग में वो रहना चाहिए कि हाँ, कहाँ जाना है. Go forward only. Correct. उसके अगर उसके बीच में कुछ आ रहा है तो I should be knowing what is my priority in my life. If my priority is I want to do something big, there are many things जिसको मेरे को मना करना पड़ेगा, and I should be very much comfortable. मेरे को दुख नहीं होना चाहिए कि मैं ये छोड़ के ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. My goal is very big, and to achieve that
certain goal, I have to leave many things. तो ये आपको करना पड़ेगा I feel. Okay, in this scenario, I would like to ask you one more question again. Like when you start the agency, or just because ठीक है, as I can expect or I can think कि आपके जो friend circle होगा, they are just doing like whatever is it, ठीक है. तो जब आपने स्टोनिक मीडिया स्टार्ट किया, देन आप डेफिनेटली आपका एक डिफरेंट माइंडसेट होगा. तो Yes. आपके फ्रेंड्स लाइक सपोर्टिव थे और एल्स की तू ये क्या चीज कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, इट्स लाइक व्हाट द शिट यू आर मेकिंग, व्हाटएवर इज इट. बिकॉज़ इन माय सिनेरियो जब मैं लाइफ कहते हैं ना, मैं लाइफ को लेके सीरियस हुआ, तो स्टिल माय फ्रेंड्स लाइक कि भाई तू क्या कर रहा है ये वो, लाइक इन द, मैं एक सिनेरियो बताता हूं, लाइक कम्युनिकेशन के मामले में ऑफ कोर्स जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद देम, दे विल बी लाइक इंग्लिश क्यों बोल रहा है ये वो, लाइक व्हाटएवर इज, ठीक है. तो उस केस में आपका क्या सिनेरियो है जब आप अपने लाइफ को लेके सीरियस होते हो, तब आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? तो मेरे भी फ्रेंड्स का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था. They were like कि one common stigma fuck all question what we used to hear is एक ही तो जिंदगी है, अगर इसमें मजे नहीं करोगे तो फिर क्या होगा. बट एक ही तो जिंदगी है, अगर आप इसमें काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे. लाइक I always used to say my team very philosophical thing that there are 15 lakh living beings are there in this world. Aqua world, जानवर, insects, bird, सब मिला के 15 लाख species है जो सांस लेती है, जिसमें से इंसान एक है. अब human beings are the most superior among them. सबसे ज्यादा strong है, जल्दी सीखता है चीजों को, evolve जल्दी करता है. Human race अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो बहुत जल्दी evolve हो रहा है. अगर like the ratio of being born as a human being, the probability 0.15 बार 0, उसके बाद 1.5. इसके बाद अगर आप इंसान बने हो तो आप पहाड़ों पे घूमने के लिए, मैगी खाने के लिए नहीं बने हो. आप इस दुनिया में आए हो to derive some value, to derive some meaning in this world. एंड आपको काम करना पड़ेगा. आप मजे बाद में करो. See, what I feel personally is मैं अकेले जाके क्लब में घूमूं, चाहे अकेले सोलो ट्रिप लूं, इंस्टाग्राम पे जो काफी चलता है, उसके बजाय अगर आई इमेजिन माई सेल्फ बीइंग 30-35, फैमिली के साथ अगर मैं वो ट्रिप्स लूं ना, तो आई विल फील मोर फुलफिलिंग. या अगर मैं अपनी टीम के साथ कहीं ट्रिप पे जाऊं ना, तो आई फील मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा रादर देन मैं अकेले किसी सोलो ट्रिप पे जा रहा हूं. तो I feel this is the age you can't fuck up. You have to discipline. You have to work your ass off. This is what I feel. As a founder, like in your team members too, ठीक है, ऐसे लोग भी होंगे जिनको like कभी आना नहीं है, Yes. या उन्हें ऐसा है कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंगली करूँ, मैं आपके अकॉर्डिंगली क्यों चलूँ. तो how do you tackle them? तो हमारे यहाँ पे it is very simple कि आपको जो भी काम असाइन हो रहा है ना, आपको काम हमें कंप्लीट करके दे दो. अनटिल एंड अनलेस वो काम कंप्लीट होने में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद भी यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर वाचिंग रील्स इन द ऑफिस, वी विल नॉट अलाउ दिस. हायर फास्ट फायर फास्ट इज द थिंग विच मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाया हूँ. वो इमोशनल कनेक्ट कहीं पे हो ही जाता है अपने टीम मेंबर्स के साथ. बट दिस इज व्हाट आई आल्सो वांट टू लर्न इन द फ्यूचर. आप काम कंप्लीट करो, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा जो चीज करना है वो करो, फ्री और फ्री. हाँ, लाइक मजा करने में भी तब मजा आता है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ और आप वाचिंग रील्स और डूइंग अदर स्टफ, दोस्तों के साथ ही हूं कर रहे हो. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फीलिंग यार. वन स्किल इन योर पर्सपेक्टिव कि एवरी यंग मार्केटर को, या फिर यंग जो यूथ है जो बिजनेस अपना स्टार्ट करने की सोच रहा है, उन्हें ऐसी कौन सी एक स्किल है जो अपने में डेवलप करनी चाहिए? Execute, 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 execute. Sleep, eat, execute, execute, execute. Sleep, eat, execute, execute, execute. मॉर्निंग में उठो, लाइक वो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी शुड बी द ओनली थिंग. कि मैं अगर उठा हूँ और आज मेरी डायरी में अगर मैंने 10 काम रात को लिखा है ना, तो वो 10 काम कंप्लीट हो चुका है. मतलब वो आई शुड हैव द कॉन्फिडेंस विद इन माई सेल्फ. तो 10 काम मैंने अगर कल रात को लिखा था तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा. कुछ भी हो जाए वो कंप्लीट हो जाएगा. सो रादर देन प्लानिंग एंड मेकिंग स्ट्रेटजीज,
थोड़ा सा सपना आप देखिए, बहुत जरूरी है सपने देखना, बट executional efficiency should be the core of your daily routine. This is Until what I आप think. एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो आप प्लानिंग करके क्या करोगे? Yes. डेली प्लानिंग करोगे, डेली सोचोगे, बट एग्जीक्यूशन ही नहीं. Yes, for sure. One thing you would tell your younger yourself. Everything will happen. Whatever you are dreaming, that dream will be a reality. It will take time. So do not, mess around things or be so much anxious and so much, tensed about कि ये क्यों नहीं हो रहा है, चाहे ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है. Everything will happen. आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो एंड आप अपना डेली रूटीन हर दिन का टास्क कंप्लीट करते चलो एंड वो जो ड्रीम आपने अल्टीमेट सोच के रखा है, इट विल बी अ रियलिटी वन डे एंड द बेस्ट पार्ट इज यू विल नॉट इवन रियलाइज कि वो रियलिटी हो चुका है. कुछ ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स होंगे जहां पे यू विल सी व्हाट द फक, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ड्रीम कपल ऑफ ईयर अगो कि ऐसा हो एंड आज वो हो रहा है. सो इट विल टेक टाइम. जस्ट डू योर वर्क. आप अपने काम सर झुकाओ और काम करो, सब कुछ हो जाएगा. इट विल टेक टाइम. दिस इज द एडवाइस आई वांट टू गिव टू माय यंगर सेल्फ. Okay, and what's the next big vision for Stonic Media? The next big vision for Stonic Media definitely is to make a team of 1,000 people, to expand phenomenally, like horizontally and vertically, to have our offices in different cities, to work with bigger conglomerates, FMCG companies, bigger brands, international clients, is what like the primary goal is to make a team of 1,000 people and to make to take Stonic Media internationally in the coming 3 years is what I feel. I wish this your vision came true one day for sure. For sure it will. Okay. One word to describe your founder journey. Roller coaster ride. One tool you use almost every day. Google Sheets. One marketing myth that local business should aware of. Digital marketing agencies are not magicians. Skill every young marketer should learn. Communication skills. One book that you recommend to young founders. Think Like an Artist by Astron Cleon. So the next question is one future trend every business owner should prepare of. You have to invest at least 5% of your revenue in marketing. So Harsh, how was your experience about this very first podcast? It was very amazing. The questions are, very deep. Not, I was not expecting कि इतना deep होगा questions, but it was really fun. Like we are shooting this podcast on Sunday. I thought कि Sunday खराब हो जाएगा हमारा, but hopefully वो नहीं हुआ. मजा आया. Okay. So one last question. ठीक है. Have you watched India's Got Latent season 2 first episode? Crazy. खत्म. Yes, cut.